बताएंगे कुछ, वो सुन लेना बस। जो लोग ऑनलाइन बैठे थे वो भी ऑफलाइन आ सकते हैं, ये कहीं जा नहीं रहे हैं, ठीक है। मेन चीज अभी जो MUN के बारे में उसकी ब्रीफिंग अभी थोड़ी देर में होगी, तो जिसको आना है वो आ सकता है। हम तो उस पे बैठ जाते थे। हाँ हाँ रुक जाओ, स्पीकर्स का नाम क्या यार ये नहीं तो ये थोड़ा सही नहीं होगा, हमारा ना ऐसे ही सिस्टम है, ज्यादा बातें करते हैं। आई होप दे विल डू जस्टिस टू योर टाइम। शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ओके, सो 19th को वी हैव फर्स्ट सेशन जिसमें विल टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, विल टॉक अबाउट करियर्स एंड द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड द आर्ट ऑफ डिबेटिंग, जिसके लिए वी विल हैव Riya, she's an eminent MUNer, and she has also participated in Geneva and all that international MUNs as well. And for the entrepreneurship and career thing, we will have Yashodhara. She's a budding entrepreneur, and we'll have Vishwas Fatehpuria, the founder of Ishan Foundation. Okay, and he's the founder of entrepreneurship cell of my college as well, Symbiosis Law School, Noida. All right, so we'll talk about it. And so just a very quick question, what according to you is public speaking? Anyone, even from the online ones? The art of expressing yourself in front of people. It's public speaking. Okay, consider. Yaar has mat yaar. Acha. So should I also just give the answer? Yeah, sure. Yeah, so basically I'll just explain in my own language. So the any person who is just explaining anything or a particular debate and without any hesitation or any problem. She's a class 9 student, उसके साथ तो she Okay. But I am hesitating. Am I doing public speaking or am I speaking in front of public? What do you think? In an online mode, it can be. Hey. Okay. Considered. So I'll tell you what I feel. Public speaking is just expressing your thoughts in front of even one person. Because if you will express your thought in front of yourself, like जो mirror में हम लोग करते हैं for the practice, it's not public speaking. Public speaking is something you have people in front of you. This is public speaking. Just there is no factor of hesitation, there is no factor of stage fear, because public speaking is speaking in front of public. So why do you think it is important? Anyone, guys? It enhance our capability to for a further future, because we get more events, like if one is in business or anything, he or she need to do some meetings or express her or his views in front of many. Okay. So this enhance our capability. That's great. Humans are like social beings. I got your point. That was good. And on top of that, we need to, influence people, enhance their point of view, and we need Yes, great. So what I feel, according to myself, the main motive of us expressing in front of others is to form their point of view on what we speak or what we feel, so that our presence is considered in front of others. So this is what I feel. And now I just wanted to talk about professionalism a bit, because like everything is now professional nowadays. Even schools, even this class is professional. Even when you come casually here, it has some elements of professionalism here. So like any one of you, again, if you can just tell us what you think is professionalism.
even from the online people. कुछ तो पता होगा यार, थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म वर्ड से तुम क्या डिसाइफर कर पा रहे हो? तो क्या मतलब होता Sir, more organized way, something which is we are not perfect in it, but we are trying to achieve Okay. and we are following it for ourselves. Okay, great. I'll tell you the definition. मैंने exact definition लिखी है, एक मिनट रुको. Professionalism mainly refers to competence or skills that are expected out of a professional. कि if I am a law student and if I go to a court, so what is expected from me, what kind of adherence is expected from me, what kind of conduct is expected from me is what is known as professionalism. She is a business student. What is expected from her is her professionalism. All right, so professionalism mainly refers to the code of conduct, how you comply with what in what profession you want to be or in what profession you are. That is professionalism. And अभी बहुत एलिमेंट्स हैं जैसे प्रोफेशनलिज्म के, आप लोग सब शांति में बैठे हो, कि हमारी बातें सुन रहे हो, हम यहाँ खड़े हैं, या तो यहाँ पे चलो कोई कूद रहा होता, कुछ भी बातें कर रहा होता साथ में, दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म. अभी जो जैसे बैठे आप आराम से हमारी बातें सुन रहे हैं, हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोफेशनलिज्म. your conduct, your behavior, your attitude towards what you like to do and what you are doing, because that can be different, is what professionalism is. So I'll tell you a story of my college. My director, he's very particular about professionalism. Okay, if it is a uniform day, it has to be a uniform day, and if it's a blazer is compulsory, blazer is compulsory. Tie can't be here, sleeves can't be folded. Moreover, if it's formals, you can't wear loafers, it has to be formal shoes. Moreover, my classes starts from 9:15. I'm talking about the physical thing. If it's 9:15:01, we are not allowed to enter our class. This is professionalism. Moreover, the etiquettes we have to follow, or the etiquettes that we behold, and the attitude we have is also included in professionalism. So this is about the first session that we will conduct. Moreover, the resource person, as I have already told you, are some eminent people. So we all hope, I hope even to see you all there, because that would surely be physical and not online. So online people, please make a note of it. sir, I have a doubt. Yes. Sir, can we compare यार professional? सर एक मिनट पहले ना सर मत बोलो, भैया बोल दो यार. ठीक है, मतलब can we compare professionalism with strictness? To some extent. To some extent, because it's inside you how dedicated you are towards your profession. Because if you are not dedicated and if you take it as casual, so you just can't adhere to what your profession requires. Because I'll tell you, for my college, 75% attendance is compulsory for one semester. If it's 74.99, then also we get the semester back. So it is so strict. And this will lead to the professionalism. I'll tell you the implication. So I went to court for my internship, and there the timing that was told to me by my recruiter was 10. It was only me who was there present at 10, and everyone was late. So this is the implication of professionalism and uh, your dedication towards your profession or your job or whatever you are doing. So I hope that's clear. Yeah. Yes, bhaiya. Thank you so much.
Thank you. Okay. We'll talk about we'll talk about the second session that will be on 20th. So 20th, हाँ timings बता दो ना बस. So 20th को session जो है that will be from 10:30 to 1. और जिसका ये session रह जाएगा we'll record it because इसमें और eminent personalities आ रही हैं and we all want कि you all should be there. So yeah, Nishtha, okay, you can go ahead. Do you want this? Could you again repeat the timings of 28th session? 20th. 20 February. 10:30 to 10:30 to 1. Hello, am I Okay. audible? Yeah. Okay, so 20th को अपना पहला दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही. Yes, you are not audible. अभी तो ऑडिबल थी, जस्ट अभी आवाज चली गई. No. आपके एक्सप्रेशन से पता लगा कि आप बोल रहे हो कि आप ऑडिबल. Okay, मैं दोबारा बोल रही हूँ. Okay, so we'll start with MUNs का procedure वगैरह. जैसे like अभी we'll brief you about MUNs. What are basically MUNs और like. जी what are बिल्कुल its ऑडिबल नहीं हो benefits. आप. ये दी आप different- थोड़ा सा तेज बोल दो. हाँ, ये बंद अगर कनेक्ट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है. हाँ, एक सेकंड. हाँ, रुक जाए एक सेकंड. वो ना जैसे कनेक्ट हो जाएगा वैसे ऑटोमेटिकली इट विल बी गॉन एंड देन अगेन नॉनसेंस विल हैव टू टेक प्लेस. ये सारा जितना है. आवाज ऐसे सही आ रही है, वैसे सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं. जो कान लगाने की जरूरत नहीं है, आवाज नहीं से आएगी तेरे को. नहीं अभी कनेक्ट ना हो इसके लिए उसके लिए अच्छा, back. वो कुछ कर ले. एक सेकंड. यार होश ना. बड़ा देना एक सेकंड. निशा दे जरा. ऐसे ही बोल दो सर. अरे उनको आवाज इनको आवाज तू बोल रहे तक वैसे तो आवाज जा रही है. सर आपकी तो सर आ रही है. आपकी आ रही है. मेरी यस सर. सर की सर बुलंद दीदी की आवाज वॉइस है. बहुत ही. अरे ऐसे ही है, इसकी आवाज नहीं आती है. और तेज बोल निष्ठा एकदम जैसे शेरनी होती है ना वैसे. अब आवाज आ रही है. या. हाँ जी. हाँ दीदी आ रही है. तो 20th को हम स्टार्ट करेंगे सोशल इश्यूज पे. हैप्पी. तेज. Okay, so we'll start with social issues. उसमें हम बात करेंगे like sustainable development and gender equality वगैरह. इस सब के बारे में आपको speakers आएंगे और बाहर से speakers भी आएंगे. ठीक है. Then we'll talk about MUN. Like अभी इस session में we'll brief you about MUN कि क्या होती है MUN and what are its benefits and like basic introduction about MUN. And then 20th को Kirandesh Kaur will be here. She is a student of Michigan University. Yes, sir. And she has been a part of international MUNs all over the world. So, like she's a big giant in this MUN industry. So she'll be here to brief or like explain you about how an MUN works. Okay, its procedures, its committees, and everything related to that. It will be a very like explanatory session, and then we'll talk ZHEC project. Okay, there will be a session about mental health. Mental health पे ZHEC project के founders आएंगे. Like it's a big project in Delhi. So Mainly Jaipur. हाँ, so ZHEC से आएंगे लोग आपको mental health के बारे में बताएंगे. They'll talk about Sushant Singh Rajput's case. Okay, so काफी अच्छा रहेगा 20th का सेशन and 20th के सेशन में बोल देना माइक मुझे प्लीज. ये सारा प्रॉब्लम अभी ना, ये सबसे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है ना तो सब कुछ गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे. वो भी बहुत दिनों से मैं लोगों को गाली बक रहा था कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया. मैंने आज देखा लैंड वायर कटा हुआ था. So 20th के सेशन के लिए आपका ड्रेस कोड वेस्टर्न फॉर्मल्स रहेगा.
लाइक आपको ब्लेजर वगैरह अगर है आपके पास तो पहनना, शर्ट पहननी है, ब्लेजर नहीं है तो शर्ट पहननी है। हाँ। आपके दिमाग में तो क्वेश्चन मिल जाए जो भी आपने बताया आपको, सुनिए ये देखिए अपना क्वेश्चन। And what about the venue? Venue. Because we'll be having speakers online and all. So पहला जो हम लोग बात करेंगे सोशल इश्यूज में, that will be environmental issues. और environmental issues के लिए we have Bhavya Birla with us. So he is one of a person who is associated with UN and this environment projects and climate change projects for a very long time. भैया आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते। सर अब आ रही है हंसने की। हेलो, यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। Yes, so now you are. ऑडिबल इन अ गुड सेंस ना, अच्छा बढ़िया वाली आवाज आ रही है। यस सर। Yes, sir. Okay, am I audible now, guys? Very clear. यस Very. Okay. Pleasure is all mine. Thank you. Okay, so I was talking about mental health. So mental health we chose for you because Sushant Singh Rajput के case के बाद mental health was a topic that was in the limelight. Moreover, online की वजह से बहुत ज़्यादा pressure हो गया है बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर भी of course. तो जिसकी वजह से mental health is deteriorating सब लोगों की. तो इसलिए we thought कि we should have a session and the speaker would be Shruti Mehta. Shruti Mehta is the co-founder of Zehik Project. Zehik Project is mainly in Jaipur but is working now in Jammu and Kashmir and all over North India. All right. Then we'll have gender equality and our resource person would be Mannat Marwa. She's from my college only, but she's like an extraordinary student. She's my senior. So we'll have this with in association with Jaipur Pride. So वो जो भी होगा तो they'll talk about सब कुछ उसमें, ठीक है? And next will be the impact of social media. No? The impact of social media and digitalization, and our resource person would be Payal. So Payal is very eminent person in open mic industry, be it Mumbai, be it Delhi, be it Jaipur. So she'll be here, and of course your dress code would be वेस्टर्न फॉर्मल. तो ड्रेस कोड अध्ययन कर लेना वरना विश्वास भैया भड़क जाएंगे. तो ड्रेस कोड would be western formal. Also to all the online people, this would be offline and we won't be streaming it either on Zoom or on Google Meet. So make sure you are here. Okay. ओके भैया। Thank you. Okay, भैया. अब आते हैं 22 को MUN पे, ठीक है? तो MUN विल बी पूरे दिन की होती है MUN, ठीक है? MUN का ड्रेस कोड फिर से रखा है इंडियन फॉर्मल्स, ठीक है? फिर से अध्ययन कर लेना. हाँ मतलब जो भी हो तुम्हारे पास. वी हैव अरेंज बहुत अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए. ये MUN जो है ये 3 कोलैबोरेशन हो रहे हैं. शिवालिक क्लासेस, ईशान फाउंडेशन, कार्मिक MUN जो कि किरणदीश की MUN है. किरणदीश इज द फाउंडर और किरणदीश एक बहुत एमिनेंट पर्सन है MUN सर्किट में, बीट पूरा नॉर्थ इंडियन सर्किट और बीट इंटरनेशनल सर्किट, क्योंकि वो इंटरनेशनल MUN भी चेयर करके आ चुकी है और उसका जो एक्सपीरियंस है दैट इज आई बिलीव 100 और 120 प्लस MUN. So this is huge. Yeah. हाँ.
So she'll be here. Moreover, we also have an MUN जिसका नाम I am forgetting, और उसकी Merville MUN. So उसकी founder is Mehak. Mehak is also very eminent person in Delhi circuit. So she'll be here. So this is a collaboration. So for the rules of procedure that would be on 20th, वो A to Z scratch से सब लोग सब कुछ explain करेंगे. We'll have 3 committees. तो जो तीनों committees होंगी वो है एक United Nations General Assembly, All India Political Party Meet and International Press. तो UN कमिटी के लिए रिसोर्स पर्सन होगी किरंदीश और चारू. चारू इज अगेन जयपुर की बहुत एमिनेंट MUNer. मोरोवर AIPPM के लिए वील हैव महक एंड आद्विका. आद्विका इज अगेन जयपुर की है, शी इज ऑल्सो एमिनेंट, एंड चारू एंड आद्विका बोथ आर वर्किंग विद ईशान जयपुर. तो वील हैव देम. और IP के लिए तो मैं कर दूँ. ठीक है. बाकी MUN क्या होते हैं वो निश्चय बताएगी. बाकी UN तो पता ही होगा क्या होता है. UN इज अ बॉडी. और UN चार्टर के बारे में भी आई होप यू ऑल आर अवेयर कि UN Yes, चार्टर. sir. Yes, bhai. Okay, thank you. UN charter is more of a constitution for UN. Constitution would not be a correct word, but just for your understanding, it has principles and provisions that relates to UN and its functioning, like membership क्या है या powers क्या है different organs की. Like constitution जैसे हमारा है, this is equivalent to UN का UN charter. ठीक है. तो अब MUNs वगैरह क्या होती हैं, अगर कुछ को पता है तो भाई बता दो, वरना हम बता देंगे. Understandable. Okay, so MUNs are basically simulation of the actual United Nations, wherein the committees are set up, be it General Assembly, be it UNHRC, be it UNCSW, UNEP, anything, and the agenda that we choose, or the agenda that is chosen, would be the real world problem, and all of you would be representing some countries, and on behalf of those countries, or being the ambassador or being the delegate of that country, you will all reach to a conclusion. You will have debates, because you can't reach to a conclusion without debates. You will have debates, you will have sessions in the sense we have, I believe, 3 kind of sessions. One is GSL is General Speakers List. So second we have moderated caucus, wherein the chair, the executive board would be moderating everything, and apart from it we have unmoderated caucus also. So unmoderated caucus में you discuss within yourself, and it is not moderated by the EB, क्योंकि उसके तुम्हारी डिप्लोमेसी के मार्क्स होते हैं उसमें, नॉट अबाउट योर कंटेंट. ऑलराइट. बाकी UNGA we'll have here, we'll have Indian Committee AIPPM. AIPPM में क्या होगा, we'll allot you, or I mean you only will let us know or choose the political figures from India, और जो हमारा एजेंडा होगा तुम्हें वो बन के बात करनी है. Suppose if I choose to be Narendra Modi, or I choose portfolio as Narendra Modi, I'll be put forwarding Narendra Modi views and not my views. So it's not Sarthak there, it's Narendra Modi.
on the agenda. All right, and we also have IP और UN में you are the countries, ठीक है, और AIPPM में you are the political figures, और IP is international press. तो अगर किसी को स्टेज फियर है कि मैं नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, या किसी ने रिसर्च नहीं करी है इतना कि कुछ हो जाए, या नहीं हो पा रहा, मतलब किसी को नहीं पसंद बोलना, तो दे कैन ऑप्ट फॉर इंटरनेशनल प्रेस. इंटरनेशनल प्रेस में वी हैव रिपोर्टर्स एंड वी हैव कैरिकेचरिस्ट, वी हैव others as well, but we are not considering here because photographers क्या ही करेंगे अभी. All right. So रिपोर्टर्स का काम होता है कि जो भी कमिटी में चल रहा है, be it UN और AIPPM, उस कमिटी के बारे में लिखना है in an unbiased opinion view. And there are different types of articles, like beat article होते हैं, formal reports होती हैं, opinionated editorial होता है. So these are different things that will be told to you on the day of the conference कि तुम्हें लिखना क्या है, और उसके बारे में you will be briefed about पहले ही कि क्या क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होता है और वर्ड लिमिट क्या होती है. प्लस कैरिकेचरिस्ट का द थिंग इज यू हैव सीन न्यूज़पेपर में आते हैं मोदी के कार्टून, तो दोज कार्टूनिस्ट्स आर कैरिकेचरिस्ट. जो so mainly caricatures are the representation of what is going on in the committee in an exaggerated or humorous manner. Like you must know that because तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में, राइट? हाँ भैया. Yes, भैया. हाँ, तो if someone is interested कि मुझे ड्राइंग करनी है या मुझे अपने व्यूज जो हैं वो बोल के और लिख के नहीं, बना के एक्सप्रेस करने हैं, बिकॉज मैं अपना बताता हूँ, आई मेनली गो फॉर IP. मैंने रिपोर्टिंग करी है, बट आई मेनली गो फॉर caricature and I have been head of IP for many conferences. I have been head of caricaturist for many conferences. Even editor in chief, but मुझे वो जॉब पसंद नहीं है, मतलब वो हेक्टिक होता है. तो इसीलिए, and I hope the crux is clear to you. अगर किसी को कोई डाउट है तो you can ask. Can you please repeat the dress code once? Okay. हाँ सर, वो तो पोस्टर निकलेगा. तो ड्रेस कोड वुड बी इंडियन फॉर्मल्स फॉर द MUN, एंड फॉर द सेशन ऑन 20 it would be western formals, and for the session on 19th it would be casual. ठीक है, बाकी we'll open the registrations abhi, and Nishtha will tell you why is it important to do MUNs, because MUNs, what is MUN you know, but why MUNs, Nishtha will let you know. Hello. Am I audible? Yeah. Yes, दीदी. Okay. So आप ये पूछोगे कि अब मैं MUN क्यों करने आऊँ, इसमें मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं हमारे को MUN करने. So okay, पहले मॉडल यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ. और यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड. Excuse me, दीदी. हाँ जी. आप थोड़ा सा तेज बोल लीजिए, प्लीज. Okay, so United Nations was formed in 1945. MUNs होना 1949 से स्टार्ट हुई थी, एंड इंडिया में MUN कल्चर आया 1996 में. So जैसे मेधा said कि it is a simulation, academic simulation of United Nations. People gather and they choose their portfolios, and so they choose their portfolios, and like normal MUNs में you get 1 month time to research for all of the topics that you've been shared. So अभी तो हम आपको 1-2 दिन का ही दिन देंगे, क्योंकि like 20th का सेशन है, 22nd का तो नहीं है. So
since you have to research about everything, like अगर आप UNGA में part ले रहे हो, so you'll have to represent a country, so you'll have to like research about the country particularly, उस particular topic से related उस country ने क्या क्या reforms किए, क्या क्या revolutions आए हैं, या कुछ भी हुआ है, जो भी उन्होंने करा है काम उससे related. So not just India, you'll also like research about every other country, okay? And for suppose you are in AIPPN, so like अगर आप political किसी leader को choose करते हो, तो you'll get to know more about in-depth knowledge of the particular politician and उसने क्या क्या काम किए हैं. So you'll particularly get a worldly knowledge, in-depth knowledge मिलेगी हर चीज़ की. So that is always beneficial because a person who knows everything, like a person with awareness, is a better person than who is good in studies. Okay? So ये इसका पहला benefit है. Second benefit, public speaking. आपको like बोलना आ जाएगा, आपको अपने views रखने अच्छे से आ जाएंगे. मतलब अगर आपने ये नहीं करी, यहाँ पे मत रुकना, क्योंकि ये एक सिर्फ starting है, आगे भी एमएन करोगे. So you learn about how to speak, okay, how to present your views in a professional manner. Okay, so debating skills आपकी enhance होंगी. Then you learn like code of conduct, decorum. Okay, वही professionalism आ जाएगा. And then तो ये सब होता है. benefits आपको fluency आ जाएगी आपके language में, and you आपकी writing skills enhance होंगी. like अभी आप स्कूल में जैसे reports लिखते हो, इससे बहुत अलग reports लिखी जाती है newspaper reports. Okay, there is a difference, clear difference between a newspaper report and the report you as a student write. तो वही प्रोफेशनलिज्म वाली बात आ जाती है. तो हर जगह लाइक आपको इवन जैसे आपको पता होगा जॉब के लिए आपको प्लेसमेंट के लिए आपके GDs होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं. तो ग्रुप डिस्कशन आर बेसिकली स्मॉल डिबेट्स कि आपको अपने व्यूज किसी टॉपिक पे, वही चीज़ हो गई, आपको ऑन द स्पॉट बोलना होता है. तो सिंस अगर आप पहले से आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, तो यू विल बी बेटर बी एबल टू लाइक कीप योर पॉइंट ऑफ व्यूज एंड हर चीज़ के बारे में. सो आपको कॉलेज प्लेसमेंट्स एंड जॉब इंटरव्यूज में काम आएंगे, आपके इवन कॉलेज रिक्रूटमेंट्स के लिए काम आएंगे. आपका पोर्टफोलियो पहले से ही बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. आप लाइक यू विल बी वन ऑफ योर ओन काइंड. तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं इसके एमएन के. Yeah, you are not audible. What was the last thing you heard online वाले? तो बस यही होता है म्यून में. अच्छा ठीक है. ओके. सो वी वर टॉकिंग कि MUN से जो आपको ट्रेड्स मिलेंगे, तो सिंस यू आर इन स्कूल, वो आपके कॉलेज एडमिशंस में भी काम आएंगे. ठीक है. सो और रिक्रूटमेंट्स में तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट ड्राइव हो रही थी एंड GDs चल रहे थे. तो GDs में हमें वीडियो दिखाई थी. तो GDs में हमारे सीनियर्स कुछ भी बोल रहे हैं. तो यू विल गेट टू नो व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक. एंड व्हाट टू स्पीक में भी यू स्पीक अबाउट द फैक्ट्स and not anything or not just anything. So this will enhance your speaking skills and moreover your writing or your drawing or cartooning skills as well. So language first of all is very important because formal होता है सब. and गाली नहीं दे सकते guys, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. और ड्रेस कोड होना इज कंपलसरी. एंड अटेंडेंस, कोड ऑफ कंडक्ट में मेन चीज़ जो होती है वो होती है अटेंडेंस और वोटिंग. ठीक है. तो अगर और GSL के लिए अपना नाम रजिस्टर करना. तो अगर आपसे चेयर पूछ रहा है कि who all want to register for GSL, तो you will not stand up or you will not start speaking उधर से ही. You will raise your placard पहले. The chair will recognize you and then you will keep your placard down and then according to your turn you have to speak. ठीक है. Moreover यहाँ पर थोड़ा हमने इंटरेस्टिंग बना लिया.
ठीक है। रिसर्च मैंने बता दी कैसे करनी है कि पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग करनी है। यू आर नॉट इंडिविजुअल, यू आर रिप्रेजेंटिंग ईदर अ कंट्री और यू आर रिप्रेजेंटिंग ईदर द पॉलिटिकल फिगर्स। ठीक है। हाँ, अब ना वी हैव विनर, जिसमें विनर होते हैं, बेस्ट डेलीगेट होता है और हाई कमेंडेशन होता है, स्पेशल मेंशन होता है, आईपी में होता है बेस्ट रिपोर्टर, और अगर ज़्यादा होते हैं तो वी हैव हाई कमेंडेशन फॉर रिपोर्टर्स एज वेल, एंड कैरिकेचरिस्ट में बेस्ट कैरिकेचरिस्ट, और वही सेम अगर ज़्यादा होता है तो वी हैव हाई कमेंडेशन फॉर कैरिकेचरिस्ट एज वेल। So we have a very interesting proposal for you और more of a prize, जिसमें बेस्ट डेल को ईशान फाउंडेशन के अंडर इंटर्नशिप मिलेगी, रिसर्च इंटर्नशिप होगी मेनली, क्योंकि यहाँ पे वी डोंट हैव ये कि इंटर्नशिप वाला कल्चर नहीं है स्कूल से, बाहर बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा हमारे से पार रह जाते हैं आगे। ठीक है, सो वी आर प्लानिंग की इंटर्नशिप मिलेगी, मोर ओवर नॉलेज पढ़ने के लिए मिलेगी, और हाई कमेंडेशन और स्पेशल मेंशन को ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे रिसर्च सेल के अंडर ईशान फाउंडेशन के, और बेस्ट डेलीगेट को मेरविल एमयूएन या कार्निक एमयूएन जिसमें भी उसने जाना होगा उसकी फीस उसको माफ हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फीस होती है और वो माफ़ हो जाएगी, और जॉइंट सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड सर्टिफिकेट होल्ड्स वेरी सर्टिफिकेट होल्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो जॉइंट सर्टिफिकेट विल बी फ्रॉम ईशान, कार्मिक, शिवालिक क्लासेस, मेरविल, और जब इतने सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते तो ऑफ कोर्स थोड़ा बढ़ जाती है। तो दिस विल बी देयर, और सेक्रेटरिएट से सेक्रेटरिएट बता दूं कौन है? फाउंडर हमारे सर हैं। हाँ ठीक है, एडवाइजर विल बी विश्वास भैया, विश्वास फतेहपुरिया। सेक्रेटरी जनरल फॉर दिस कॉन्फ्रेंस विल बी सार्थक, एंड डायरेक्टर जनरल वुड बी निष्ठा, एंड अंडर सेक्रेटरी जनरल डेलीगेट अफेयर्स वुड बी सार्थक। नहीं, हमारे बैच वाला ना, था ना, तो दिस विल बी देयर, और आईपी में लेना, मतलब आईपी अच्छी होती है यार, ले लेना। और एजेंडाज देखो, एजेंडाज में यूएनजीए का एजेंडा वी आर प्लानिंग टू हैव ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। तो जैसे ही यू चूज अभी योर पोर्टफोलियोज, जो प्रॉपर एजेंडा होगा, फॉर्मुलेट होगा, वो हम आपको 20th को बताएंगे, बट रिसर्च पहले से शुरू कर देना है। ठीक है, और जो AIPPM का एजेंडा होगा, AIPPM का एजेंडा will be on social media and digitalization and in India and its scope in future. ठीक है, so this is all from my side. We'll open the registrations. We have the portfolio matrix, and you can choose your portfolios and let us know so that you can start researching, and we'll start having, or we'll start preparing your placards उसी हिसाब से, because we want to give you a real feel of everyone. मजा आएगा यार। और सोशल्स करवानी होंगी, सोशल्स भी करवा देंगे, डीजे लगवा देंगे तुम्हारे लिए। सोशल्स होती है एमयूएन में पक्का। सर स्पीकर मैं ला दूंगा बॉनफायर करवा देंगे बाहर ठीक है, डांस कर लेना। और कमिटी सेशंस, वी आर प्लानिंग 3 कमिटी सेशन एक दिन में। ओपनिंग सेरेमनी में वील हैव सम गुड अकेडमिशियन, और क्लोजिंग सेरेमनी में प्राइस के साथ साथ तुम्हें ना ऑफर लेटर भी मिल जाएंगे इंटर्नशिप वाले। तो दिस इज फ्रॉम आवर साइड, एंड वी ओपन द रजिस्ट्रेशन नाउ। थैंक यू। Thank you. क्वेश्चंस तुम लोगों को कुछ? ना अच्छा समझाया उन्होंने। चलो बहुत ही बढ़िया।
नहीं नहीं we have a matrix ठीक है और मोरओवर तुम्हारी रिसर्च ऐसी बढ़ेगी कि तुम्हें दूसरे के बारे में भी रिसर्च करना पड़ेगा ताकि तुम बदल नहीं ऐसा नहीं हो जाता क्योंकि एनवीएम की इसमें हुआ था पाकिस्तान इंटरग्रेड पाकिस्तान में उसने बोला कि वी आर अ सेक्युलर ठीक है तो दिस इज हाउ वी डू इट एंड वी ओपन मैं खोल देता हूँ पार्ट कहाँ पे तो ठीक है हाँ हाँ और क्या यार मैंने तो सेशंस में ऑफलाइन ही आना है ऑफलाइन मतलब फिजिकल प्रेजेंस मैंने लिखा था यार अटेंडेंस मैंडेटरी है सर अटेंडेंस लिखी थी ना। एक साल ही तो है यार तुम लोग अटेंडेंस अगर मैं मैंडेटरी बोल रहा हूँ तो सर आपने हाइब्रिड भी तो लिखी थी बाद में। सर आपने हाइब्रिड लिखा था कि ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। वो बढ़िया है बहुत तेज है सो ठीक है अगर कंफ्यूजन था तो ठीक है कोई बात नहीं हो जाता सर कंफ्यूजन क्या था, इसमें तो क्लियर है हाइब्रिड है मींस ऑनलाइन भी होगी। डालूंगा मैं तेरे को हैं देख लो सोनाली को ठीक है बेटा मेरे को तो ये लगा कि सारे आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बिकॉज यू हैव अ स्पेस ऑफ 40 होंगे और तुम लोग साले 130 हो तो वो दिक्कत हो जाती है तो व्हाट विल डू इज जो भी तुम्हें करना है उसके अलावा ये क्लैरिटी है हम अगर लगेगा कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है आई विल अरेंज फॉर स्पेस आल्सो डोंट वरी अबाउट इट ओके अपार्ट फ्रॉम टीचिंग सर आधा तो सुनाई नहीं दिया। यस सर वॉइस की बड़ी प्रॉब्लम हुई। यस सर। मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। है पक्का you should have been the technical team प्रॉब्लम ये यार मैं पढ़ाने के अलावा सब काम मैं कर नहीं सकता बहुत दिक्कत होती है सब मिल जाएंगे तो पूरा घर मिल जाएगा डोंट वरी आराम से करेंगे बाहर धूप में हाँ ठीक है यहाँ पर जो बल्लियाँ लगी उनको हट जाएंगी नहीं तो नीचे कर लेंगे सर एक्चुअली में करना क्या है सर, कुछ सुनाई नहीं दिया था मुझे तो। एक्चुअली में क्या करना है सही बात है देख बेटा तू आके बता पहले बहुत डिटेल में नहीं पता ना मातृभाषा में नहीं समझाना है इन्हें करना क्या सर भैया की भी आवाज सही से नहीं आई थी। रुक जाओ यार सर रुक जाओ आप ही बता अब दो आ रही है अब आ रही है हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरी क्लियर है बोलिए। तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें एक प्रॉब्लम दी जाएगी प्रॉब्लम इन द सेंस कि एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके बेसिस पे तुम्हें अपनी रिसर्च करनी है अपना कंट्री चूज करके अगर तुम ऑस्ट्रेलिया चूज कर रहे हो तो तुम्हें सार्थक बन के नहीं ऑस्ट्रेलिया बन के बोलना है उस पर और तुम सब लोग फिर एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट होता है जिसमें सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं तो उन सॉल्यूशंस को तुम सब लोग जो कमेटी में मेंबर्स होंगे वो लोग डिबेट करके सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे ये होगा। तो हमें प्रॉब्लम लेके आनी है। वीडियो चला दे यूट्यूब चला दो पार्लियामेंट सेशन देखा है किसी ने? हाँ भैया हाँ न्यूज़ पे दिखा है भैया। AIPPM ऐसी होती है AIPPM रिप्रेजेंट करना है ना अपने आप को। अनमॉडरेटेड कॉकस इज इनफॉर्मल सर एमयूएन डाल दो मॉडल यूनाइटेड नेशंस डाल दो मॉडल यूनाइटेड नेशंस ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस डाल दो 1 घंटे किया सर नहीं नीचे अरे उन्हें समझ नहीं ये सर ये प्ले कर दो
Modern United Nations, or UN for short, is a simulation of the real-life UN, United Nations. This is the place of a delegate of a country or an international organization. The aim of the council is to find a solution to the problems we be given as a topic to fellow countries. Just like in the real UN, you'll have a chance to draft resolutions and find a lasting solution to some important issues today. सबटाइटल्स ऑन कर दीजिए। The refugee crisis and more. The aim of the United Nations in real life is to prevent conflicts and promote international cooperation. It's a forum for countries to express their views and make decisions together. To do this, there are numerous organs in the UN, such as the General Assembly, the Cabinet and Social Council, the Security Council, the International Court of Justice, and many more. In MUN, you'll get a chance to try the views of all of us. Resolutions are the heart of MUN. They are a set of rules and guidelines that countries in the world generally follow about a whole range of things, including human rights, other nations, and war. In real life, these are drafted and debated throughout weeks and months, and they require input from a lot of people, like member states, experts, and even NGOs. MUN is all about cooperation, not competition. It's not a race to beat other people. It's about how well we can work together and overcome differences in opinions. As a delegate of a country, you'll have to play a part by sticking to your foreign policies and open your ways when you compromise with others for the better good. Different conferences have different formats for running a council. Prominent examples include PKIMUN, the Hague International Model United Nations, MUN, Harvard Model United Nations, and many more. MUN helps you pick up soft skills like research, communication, critical thinking, and creativity. If you're interested in joining a local MUN conference, then join the Malaysia MUN group here. And if you're worried about not knowing what to do, you've come to the right place. In this series, we'll do our best to help you prepare and learn the basics of MUN. Stay tuned in the next episode and see you soon. आई होप हल्का फुल्का समझ में आया। बेसिकली देखो कोई भी लिंक डाल देना इनको। होता क्या है ना, क्लैरिटी टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, नो डाउट। अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम तो हैं, पर बेटा देख, अगर मैं 2 लाइन में बोलना चाहूँ तो यू विल गेट अ टॉपिक दैट यू हैव टू रिसर्च ऑन, नॉट एज एन इंडिविजुअल, एज अ पोर्टफोलियो। वो पोर्टफोलियो कुछ मेरे ख्याल से हमारे कंट्रीज है, मैं देखा अभी। तो लेट्स से इफ आई take a portfolio of Pakistan and I have to talk about something like let's say women empowerment, तो मुझे पाकिस्तान में क्या होता है उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। I have to speak on that, on their behalf, not like Rahul sir or not like Shivali classes or not like anybody else. I have to do my own research of who I am representing. Then you have to do whatever type of discussions होंगे उसमें। एक पॉइंट जो मुझे यहाँ समझ में आया वो ये था कि it is not about competing, it is about collaborating. So solution निकालना है। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है, मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल इसमें लिया क्योंकि लेट्स से इफ आई से वुमेन एम्पावरमेंट, तो इट इज अ वेरी बिग इशू। काइंडली वो हम इंडियंस भी बहुत आगे नहीं है उसमें, और पाकिस्तान की बात तो बहुत अलग हो जाएगी। बट अगर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं बोलूँ नहीं मेरे यहाँ तो यही होता है भाई साहब, तो वो नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर फेलोज जो वहाँ पर आए हैं, उनके इनपुट्स लोगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करते हैं, उनकी बॉडीज कैसे काम करती हैं। Maybe you will कहते हैं ना improvise and you will accept those। मेरे ख्याल से यही होता है ना। if I'm wrong please। हाँ, डिफेंड करना होगा। गुड, ग्रेट। तो मतलब you should not put in your inputs। तेरे को रिसर्च नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब तेरे को किसी भी कंट्री का ले सकते हो, वो ऐसा कोई भी कंट्री गलत, ऐसा नहीं कोई छोटी है कोई बड़ी है, उनकी खुद की तेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए तू रिसर्च कर बैक। हाँ, इंडिया से अलग लोगे अच्छा रहेगा, बिकॉज तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग दिस एम्यूनेंस कि तेरे को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ तू इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे सार्थक ने बताया कि बहुत सारे तेरे को इंटरव्यूज फेस करने पड़ेंगे। इंटरव्यू इज द लास्ट स्टेज, बिफोर दैट वी हैव ऑलवेज हैव अ जीडी। और तेरे को बताता हूँ कि लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट खड़गपुर, वहाँ पर एक कंपनी में लेट्स से इफ देयर आर लाइक 100 स्टूडेंट्स
sitting for it, they will only take 2 or 3. Like there is an example of General Electronics, GE. कभी नाम सुना GE कंपनी? तो उसमें क्या होता है, they will take an examination, वो क्वालिफाई किया, GD में गए। अब बेटा कई बार क्या होता है, चलो खड़गपुर तो अलग चीज हो गई, अगर तुम एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हो, नॉर्मल स्कूल से पढ़े हो और हरिद्वार से हो, Why am I saying हरिद्वार से हो, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बच्चे कि तू हरिद्वार से, कि तू लखनऊ से, कि दिल्ली से, क्योंकि वो सोच अपने आप अलग हो जाती है। तो वो हमें उस चीज को अभी तुम फील नहीं कर पा रहे हो, बट व्हेन यू गो इनटू अ कॉलेज, जैसे सार्थक यहाँ से गया, इससे ही पूछोगे, देयर इज अ बिग डिफरेंस, बिटवीन आवर थिंकिंग और द थिंकिंग व्हिच द मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, जितने लोग भी हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हर चीज को सीखने का एक होना चाहिए ना, आग होनी चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो तेरे को बताएगा रिसर्च करना। रिसर्च इज नॉट कि तेरे को कुछ नई F is equal to M2A निकाल दो या कुछ निकाल दो। बेसिकली you will research about a country and that too about a specific topic, जो भी country of your choice, जो अभी हम देखा से बहुत सारी मैंने देखा लिस्ट है। तो this will help you to पोर्टफोलियो बिल्ड होता है बेटा, इस सब चीजों की वजह से। तेरी सीवी कितनी भारी है वो डिसाइड करती है तेरा पैकेज कितना भारी होगा। वो सीधी सी बात है बेटा, एवरीथिंग एट द एंड इज अबाउट, है ना, पैसा। सही है बेटा, इसमें कुछ गलत नहीं है। एवरीथिंग पैसा, कई बार तेरे को जो कहते हैं ना वो मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभी रोटी कपड़ा मकान तुम्हें नहीं पता, बेसिक नीड्स, तो बेटा ये सब चीजें हायरार्की ऑफ नीड्स तू पढ़ रहा है, मुझे पता है आजकल ना। तो बेसिकली बेटा तेरे को हर चीज को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख मैं खुद नहीं पढ़ता बहुत, भाभी तो बहुत नॉवल वगैरह पढ़ती है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने लास्ट नॉवल कब पढ़ी थी, तो क्या आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने, हाँ कई लोगों ने पढ़ी होगी, नो डाउट, इट इज वेरी गुड, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे मेरी तरह जिन्होंने लास्ट नॉवल लास्ट 2 साल 5 या 4 साल पहले पढ़ी होगी, पॉसिबल है। तो रीडिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सबसे बड़ा डर जो इस पर्टिकुलर चीज का है, मेरे को मैं बताना चाहता हूँ, तू बड़ा हो जाएगा, बड़े हो जाओगे तुम लोग, तेरे पास सबसे बड़ा डर होगा एब्सेंस ऑफ वर्ड्स। जब तुम कहीं मीटिंग में पहुंचते हो ना, और जब बहुत खतरनाक लोग होते हैं, तो तुम वहां जाके बात कर पाओ, स्टेज से तो बहुत दूर की बात है, तू किसी ऐसे बंदे से बात कर पाए, उसके लिए तेरे पास क्या होना चाहिए, फैक्ट होने चाहिए। बकवास तो नहीं करनी, वोकैबुलरी होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए बच्चे। कि अगर मुझे लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट फार्म बिल, जो भी है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी कंपनी सपोर्ट कर रहा है, बट अगर तुझे फैक्ट्स बताओ तो तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। तो वो फैक्ट्स गैदर करने का तरीका है, तो इट इज अपॉर्चुनिटी जो मे बी इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, कुछ यस सर। हाँ बेटा, तो ये एक बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुझे बताएगा आगे लाइफ में क्या क्या करना पड़ सकता है बेटा, कहीं पर भी बोलना पड़ सकता है। मुझे पता नहीं कि डीपीएस में कैसा होता है, या एंजल्स में कैसा होता है, या मुंजाल में कैसा होता है, या यहाँ पे स्कूल्स में कैसा होता है। हमारे स्कूल्स में जैसा जहाँ से हम और भाभी हैं, वहाँ पे हमें असेंबली में एक पर्ची दिया थी, लो भैया बोलो, और यू डोंट हैव, ग्रेट, मतलब तेरे फैक्ट्स होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक नेक्स्ट लेवल की, तुझे एक टॉपिक तुरंत दिया जाएगा, और वो तुम उसके लिए अचीव करो बेटा। आने वाले टाइम में इफ यू हैव टू, ये छोटी सी एमईएन अभी कंपेरेटिवली, जिसका ये एडवर्टाइजमेंट था वही बहुत फाड़ू एमईएन लग रही थी। बता ले, बता। तो चेयर सर वॉइस नहीं आ रही। कोई नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है आवाज नहीं आ रही, बट कोशिश कर सुनने की। मैंने सर आपकी आ रही है, जो साइड में बोल रहे हैं उनकी नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ फिर से, मैं ये बोल रहा कि कोशिश करो कि इसमें पार्टिसिपेट। आपकी वीडियो और ऑडियो दोनों ही क्लियर नहीं आ रही। सही है सब कुछ सर, सही तो है अब। हाँ, तुम लोग को सुनाई दे रहा है? सर आप कंटिन्यू करो। बस ये जरूरी है। अच्छा, मेरी गलती थी अगर मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहा, तो अब मेरे अलावा भाभी विल टेक केयर अबाउट ऑल दी अदर थिंग्स। बट अब मेरा कम्युनिकेशन केवल फिजिक्स के लिए या मैथ्स के लिए हो सकता है, बाकी चीज़ों के लिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तुम भाभी से बात करो, उस समय थोड़ा इशू रहता है बेटा में। ओके, हाँ प्लीज आ जा। ये पॉइंट रह गया, सुन लो भाई, आवाज तेज बोलेंगे। टू ऑल दोज पीपल जो आईपी में आना चाह रहे हैं, ईदर एज रिपोर्टर और कैरिकेचरिस्ट, विल रिलीज अ न्यूज़लेटर। पूरी MUN का न्यूज़लेटर होता है जिसमें योर
आर्टिकल्स और जो बेस्ट आर्टिकल्स होते हैं हर कमेटी के लिए वो पब्लिश होते हैं, ठीक है। और वो जो आर्टिकल्स होते हैं वो अनबायस्ड आर्टिकल्स होने चाहिए, इवन कार्टून्स भी होते हैं पब्लिश। सो सर एक दिखा सकते हैं इनको, अपना न्यूज़लेटर मैं आपको मेल कर दूं। Mind pick up in 15 minutes. Possible है? 15-20 minutes. घुसा मार दूंगा। कोई नहीं, हम अगर यहाँ अच्छा करेंगे तो आई विल टेक इट फॉरवर्ड, डोंट वरी। मैं जिस स्कूल से हूँ वहाँ तो बहुत खतरनाक लेवल पे होता है बेटा। कोई नहीं, गुड। यहाँ हो रहा है। हाँ, नेपोटिज्म हो गया। तू अलग ही। ला मेरे फोन में। ओए, रिकॉर्ड हो गया मतलब। छोड़ो, हो जाएगी विद द पैनल। हाँ? अच्छा ठीक है, गुड। ये कवर तेरा PDF। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। क्लास के आगे वैसे नहीं है तुम लोग। अच्छा कोई डिटेल है व्हाट दे हैव सेड और ओके ग्रेट। यार की फोटो इसने। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ जरूरी है। हाँ वुमेन पार्ट। ग्रेट डील अमाउंट ऑफ, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। क्या चल रहा है? हाँ तो है। मतलब कोई डिटेल आपने दी है तो कौन कौन बहुत ही बढ़िया। ग्रेट। ये कार्टून वगैरह में हमारी बहुत अच्छी बनाती है, तो अभी गायब थी। रिकॉर्ड किया मैंने, रिकॉर्ड देखना है ठीक है। हाँ एक क्लास थी ना इनकी, केमिस्ट्री क्लास थी, कोई बात नहीं ठीक है। ये रिकॉर्डिंग है, देखना मैं अपलोड कर दूँगा। हाँ फटाफट कर ले आप। देखो कैनेडा कंट्री देखो जल्दी से। अगर पाकिस्तान होगी नहीं सर इंडिया पाकिस्तान सर। लड़ाई करवा दूंगा इनको। तो खुश जिसको AIPPM लेनी है वो AIPPM ले लो और IPPM दिख नहीं रहा है इन्हें। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। तो आ रही, अब देख क्या बोलना है बता। जो भैया बोल रहे हैं वो सुना दीजिए। जो भैया बोले भैया से बोलवा ले। सबको पैनल दिख रहा है सर? ये ना थोड़ा अगर फोन आगे हो जाए ना।
सबको पैनल दिख रहा है? यस बस दिख भैया। रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ भैया दिख रहा है, पढ़ा जा रहा है, दिख भी रहा है। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन चूज योर पोर्टफोलियो फ्रॉम द पैनल ऑल्सो। तभी तो हंगामा होगा सर। दिख रहा है सबको? सो हाँ दिस जी इज भैया। यस भैया। इंटरनेशनल कमिटीज में जिसको लेना है वो बता दो, और AIPPM का इंटरनेशनल की बात करते हैं। पहले इंटरनेशनल कमिटी वाले बता दो, इंटरनेशनल कमिटी के कंट्रीज वाले। रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान श्रद्धा का है, और इंटरनेशनल कमिटी में किसी और को लेना है? मैं बुल्गारिया। हाँ भैया मेरे को लेना है। एक मिनट। रिया बोल रही थी सर कि ऑडियंस के लिए मुझे बुला लो। मैंने कहा आजा, कह रही सर से ना फेयरवेल लूंगी। सर ने फेयरवेल नहीं लिया वाली। और क्या था? जापान। ओए निष्ठा, जापान। सर फॉर्म से ना सर बहुत हेक्टिक हो जाएगा हमारे लिए। आ तो जाएगी पर बहुत ज्यादा ना हेक्टिक हो जाता है, इसलिए हमने गूगल फॉर्म नहीं निकाला, वरना हम गूगल फॉर्म निकाल देते। और UN कमेटी का हो गया भैया मैं भैया मुझे हाँ अभी ऑनलाइन वाले रुक जाओ। ओके। AIPPM ममता दीदी किसको चाहिए ये बताओ? भैया राहुल गांधी क्यों लिखा है इसमें? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल पोर्टफोलियो है तो वो फीमेल ही ले सकता है, ऐसा नहीं है। मजाक के लिए लिखा होगा राहुल गांधी शायद। अब ऑनलाइन वाले पहले UNGA वाले बता दो मुझे, दिख रहा है? हाँ अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है। स्वीडन है। अर्जेंटीना नहीं है। स्वीडन। एक मिनट, स्वीडन हमने लिखा नहीं था ना, पहले मुझे देखने दो कि UNGA का पार्ट है भी कि नहीं है। अर्जेंटीना का अरे यार इसी में से चूज कर लो, अर्जेंटीना बाद में ले लेना। और यार USA ले लो, ईरान ले लो, फ्रेंच रिपब्लिक। भैया साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया है, कोरिया है, साउथ कोरिया है। भैया फ्रांस दे दो, फ्रांस है। एक मिनट रुक जाओ। जापान। एक मिनट, कोरिया किसने बोला था ये बता दो मुझे। रिमझिम। अच्छा भैया जर्मनी। यार एक मिनट रुक जाओ, उनका सुनने दो प्लीज। USA ले ले, स्ट्रॉन्गेस्ट। AIPPM लेना है। जर्मनी किसका था? भैया दीक्षा। भैया यूनाइटेड किंगडम। भैया जापान। अरे UK कौन ले रहा है? UK बताओ पहले। सुरभि। यूनाइटेड किंगडम इज वो, जापान इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। भैया ऑस्ट्रेलिया। नो। US। भैया कौन फ्रेंच ले रहा है? सोनाली। खतरनाक होगा। इजराइल है? नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, ऐड नहीं कर सकते ना UNGA का अगर पार्ट है। यार
सऊदी अरेबिया ले लो, इंडोनेशिया ले फ्रेंच लो। रिपब्लिक में। हाँ भैया पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है? हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, पॉलिटिकल लीडर्स वाला इसके बाद है। स्विट्जरलैंड है, मिस्टर स्विट्जरलैंड कर लो। अजरबैजान लेना है किसी को? बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होता है अजरबैजान कंट्री। भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए हो गया अलॉट किसी को। रशियन ऑस्ट्रेलिया फेडरेशन भी ले लो, हो गया। यूएसए के। रशियन फेडरेशन बहुत अच्छी डिबेटिंग होती है। रशियन फेडरेशन, रशिया ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो। रशिया, रशिया कर दो। भैया हेलो, आ रही आवाज हो सर? तेरा फ्रांस कहना बेटा आर्यन। सग हो गया है, वो फ्रांस कर दिया है। हाँ तेरा हो गया। ओके ओके सर। आई विल टेक एक मिनट अब मेरे को कर लेंगे, ठीक है? तेरे को कुछ लेना है? ले लिया, तेरा हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जल्दी डिसाइड कर। हाँ ठीक है, तेरा हो गया। तेरा तेरे को करना है कुछ? नहीं, तेरा नहीं करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया सर। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ कब नहीं लेना है तो ओके, तूने ले लिया, श्रद्धा ने ले लिया। सुनील तुझे लेना है? नहीं नहीं, इन्हें मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, तुम वीडियो देख लेना, देन जो बचा होगा वो ले लेना, ठीक है? इट इज नॉट अ डिफिकल्टी, कोई सा भी कंट्री गड़बड़ नहीं है। हाँ अब एक मिनट, अब आजा, ऑनलाइन बताना कौन कौन है। आरोही, मैं एक बार पूछूंगा सबसे फटाफट, ठीक है? आरोही, अमन। हाँ अमन बोलो। हाँ सर मेरा ना इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है, बहुत देर से। हाँ बोल, क्या चाहिए? कंट्री मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अमन एक काम करना, तू वीडियो देखना, ठीक है? अभी रहने दे। अगला 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 कौन बोल रहा है? ऑनलाइन में किसी को बोलना रह गया तो फटाफट बोलो। सर मुझे कुछ पूछना था। अभी डिसाइड करना है, पूछने का काम अभी बाद में होगा, अभी देखो डिसाइड करना। हाँ बोल नंदिनी। ऑस्ट्रेलिया हो गया। रशिया हो गया। रशिया नहीं हुआ। रशिया कर। ओके, इसके अलावा जिनका ऑनलाइन है, ऑफलाइन में सबसे पूछ लिया, ऑनलाइन वाले बच गए। फटाफट बोल दो जिनको लेना है। अब सर मेरा जर्मनी है। दीक्षा का तो हो चुका है ऑलरेडी, तेरा तो लिख लिया हमने। ओके नहीं सर, मुझे ये बोलना था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया होता है, तो साउथ कोरिया का नहीं है। साउथ कोरिया का नहीं है बेटा, वो जो यूएनजी का पार्टी नहीं होगी साउथ कोरिया, तो नहीं रखा है बेटा। कोरिया रखा है बेटा, तू साउथ कोरिया की तरह बोल देना, ठीक है? ठीक है सर। का हो गया, रिमझिम का उसी का हुआ है। हाँ उसके हाँ स्निग्धा बोल। सर अगर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आपको थोड़ी देर में बता सकते हैं? हाँ हाँ एकदम बेटा, श्योर। ओके, थैंक यू सर। बहुत शैतान है साले सब। ओके, अब कौन रह गया बोलने के लिए? अगर बोलना है तो कनिका, तुमने कुछ लिया है? बस हीरो बनेगी। ऑडियंस तो सर एक बार बता दो, मैं भी ले लूं फिर। अमन बेटा, तेरे को रिकॉर्डिंग देखनी होगी और रात को मुझे बता देना होगा, ठीक है? सर मेरे को भी बता दो, मैं भी अभी ज्वाइन किया है। शैली तो अब बेटा, अभी ना जिन लोगों ने अभी देखा नहीं है, जिन्होंने अभी बेटा 1.5 आवर्स से चल रहा है, तो अभी जिन लोगों ने देखा नहीं है, मिस कर दिया है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आज प्रायोरिटी पे इसको शेयर कर दूंगा, तो आपके पास कल 12 बजे तक का टाइम रहेगा कि आप इसे देख करके रिस्पॉन्ड कर दें। ओके, चेंज भी कर सकते हैं सर? क्या बोल रही है? चेंज नहीं कर सकते बेटा, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट। ओके सर। हाँ अब हम किस पे जा रहे हैं? AI PPM पे जा रहे हैं। दैट मींस यू हैव टू चूज अ पर्सनालिटी नाउ।
ठीक है, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी, दैट टू फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। तो तेरे पास सर ऑप्शन इनकी तरफ से बोलना है क्या? हाँ इनके, मैं 1 मिनट बोलता हूँ, 1 मिनट, मैं एक बार बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। यू विल बी गिवन अ टॉपिक, यू हैव टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री यू हैव चूजन और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सनालिटी दैट यू विल चूज नाउ। ओके? अच्छा ठीक है सर दोनों में से एक करना है। दोनों में से एक करना है ना? हाँ ना ना ना, जिन्होंने ले लिया वो ले लिया। हाँ ठीक है, आप बता भाई, नकुल ने ले लिया क्या? यस सर, ऑस्ट्रेलिया ले लिया मैंने। ठीक है ओके। शर्मा तूने कुछ नहीं लिया ना? नरेंद्र मोदी बनाया था इसको। हाँ ठीक है। ऐसा मत कर। सर हाँ बेटा, आरोही नहीं, हाँ निहारिका। हाँ बोल निहारिका। सर फिनलैंड कंट्री। निहारिका का सर एक ही टॉपिक दिया जाएगा ना, सब उसके हिसाब से बोलना है पर्सनालिटी के। अच्छा आप रुक जाओ, ये सब मत करो यार। इफ आई एम गोइंग टू पुट दिस वीडियो, डोंट, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बहुत मारूंगा।